إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر انقلاب، افضل المرسلین، پیغمبر عظیم تر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ جمعہ کا عنوان آج بھی ہے اتحاد و اتفاق۔ اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کی صفوں میں جمعیت ضروری کیوں ہے؟ یونیٹی ضروری کیوں ہے؟ دراصل یہ جو اتحاد و اتفاق ہے، مسلمانوں کی آپسی یونیٹی ہے، یہ جو جمعیت ہے، یہ مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق نہیں، جمعیت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جنگ احد سے لے کر آج تک جتنے واقعات، سانحات، فسادات رونما ہوئے ہیں، وہ ان کی بہت اہم اور بنیادی دلیلیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی بات کو بطور مذہب قبول کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی بطور مذہب قبول کرو۔ مذہب کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں وہ دو ہی ذات ہیں جن سے ہدایتیں قبول کی جائیں گی، رہنمائیاں قبول کی جائیں گی، اور کسی تیسرے شخص کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا امام ہو۔ اللہ بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ، ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا ولا تنازعوا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے جھگڑا ہی یہی بنا لیا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اور لوگوں کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کو اللہ کی ذات کے برابر ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ولا تنازعوا، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ناکام ہوگے، وتذهب ريحكم، تمہاری قوتیں ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیہ، کہ تم جماعت کو لازم پکڑو۔ قرآن اور سنت پر مبنی جو جماعت بنی ہے، مسلمانوں کی جماعت، اس جماعت کو تم لازم پکڑو، اپنے نظریات، اپنے افکار سائیڈ میں رہنے دو۔ آپ کے ہو سکتا ہے نزدیک کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا امام ہو، بہت بڑی شخصیت ہو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت بنی ہے اطاعت رب اور اطاعت رسول کی بنیاد پر، اس جماعت کو لازم سمجھو، اس جماعت کو لازم پکڑو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، بھیڑیے جب دیکھتے ہیں کہ بکریاں اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہیں، جدا ہو گئی ہیں، تو بھیڑیے ان بکریوں کو اپنا ٹارگٹ کر لیتے ہیں، نشانہ بنا لیتے ہیں، چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ زمانہ آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ اطاعت رسول نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اس پاداش میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور جب لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، تو باطل قوتیں بھیڑیوں کی طرح تاک میں لگی رہیں گی۔ باطل قوتیں
भेड़ियों की तरह ताक में लगी रहेंगी, वो एकजुट होंगी, यूनाइट होंगी और हक परस्तों को अपना निशाना बनाएंगी, मासूम बकरियों की तरह चीर फाड़ डालेंगी। वही हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया कि मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की नेमत को जाया नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरफ इशारा किया, वल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। ये बात किसी आम इंसान की नहीं है, ये बात उस जात की है जिस जात ने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस पूरी कायनात को, यूनिवर्स को बनाया है, जो इंसान की नफ्सियात को जानता है, जो इंसान की कामयाबी और नाकामी के सारे अनासर को जानता है, उस रब की तरफ से है। क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, कि बातिल कुव्वतें एक दूसरे की मदद कर रही हैं, एक दूसरे का ताउन कर रही हैं, एक दूसरे के लिए इकट्ठा हो रही हैं, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। तो ऐ हक परस्त लोगों, ऐ कुरान और सुन्नत के मानने वालों, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को यूनाइट करो, एक दूसरे की मदद करो। अगर नहीं करोगे तो अजीम फितने बर्पा होंगे, अजीम किस्म के फसादात होंगे। ये फितने हैं और ये मजलूमियत की दास्तानें हैं। जहां देखिए हक परस्तों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, मजलूमियत की दास्तानें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। घरों और मस्जिदों की मिसमारी के वाकयात रोज रोनुमा हो रहे हैं। ये क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग दी थी, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। अगर तुमने एक दूसरे का हेल्प नहीं किया, एक दूसरे की मदद नहीं की, तो इस किस्म के वाकयात रोनुमा होंगे और हो रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया, ये वाकयात तब होते हैं, ये मामलात या हादसात या सानिहात तब होते हैं जब मुसलमानों में दो किस्म की नफ्सियात पैदा हो जाएं। एक नफ्सियात हुब्बुद दुनिया, हाय दुनिया, मफाद परस्ती, दुनिया परस्ती, अपनी देखो, वह कराहियतुल मौत, और मौत से कराहियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अल उमम अन तदाहा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। एक जमाना आएगा कि लोग मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन यौमइज़िन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा होगा कि उस वक्त हम कम होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस जमाने में भी बहुत होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुम अल मुहाबत मिनकुम, मगर तुम्हारे मुखालिफ और बातिल परस्तों के दिलों से तुम्हारी जो हैबत है, तुम्हारी जो अजमत है, तुम्हारी जो शान और शौकत है, अल्लाह ताला उसको निकाल देगा। वला यक़दिफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन पैदा कर देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन, एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अपनी अपनी देखो, अपनी दुनिया सवारो, ना अपने मजहब के लोगों से कोई ताल्लुक है, ना अपने खानदान के लोगों से ताल्लुक है, ना अपने कौम के लोगों से ताल्लुक है, कुछ सोचना ही नहीं है, सेल्फिश, खुद गर्जी। हालांकि मुसलमानों का मामला क्या होना चाहिए? हम ये सोचते हैं ना कि अगर कहीं और वाकया रौनुमा हुआ है तो कहीं और के लोगों के लिए वो वाकया रौनुमा हुआ है, हम तो सेफ है ना, हम तो महफूज है ना। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, आग अगर पड़ोस में लग रही है, उसकी लिपटें आपके घर तक जरूर पहुंचेगी। इससे पहले कि आप बेदार हों, इससे पहले कि आप तैयार हों, हालात बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, आपको बार बार जगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। अगर इस हदीस का आप तर्जुमा करना चाहो तो अमीर मीनाई के शेर से आप इसका तर्जुमा कर सकते हो कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मुसलमानों की यह मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम्हारे जिस्म के किसी एक हिस्से में चोट लग जाती है, तकलीफ हो जाती है, जख्म हो जाता है, उस जख्म के दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। उसी तरह
اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اس کی مصیبت کو، اس کے درد کو سارے مسلمان محسوس کریں۔ مسلمان اگر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں اگر ایمان ہے تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا درد ہونا چاہیے، یہ درد لینا ہوگا کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اتحاد و اتفاق کی کہ یہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کی وجہ ہے۔ جب مسلمان اتحاد کے ساتھ رہے ہیں، یکسانیت کے ساتھ رہے ہیں، شرافت کے ساتھ رہے ہیں اور انسانیت کے ساتھ رہے ہیں، ظاہر قرآن و سنت کو جب مانیں گے تو انسانیت آئے گی، شرافت کا اعلیٰ معیار آئے گا۔ جب مسلمان دنیا پرست ہوں گے، شہوت پرست ہوں گے، لذت پرست ہوں گے، دین بیزاری کریں گے، تب وہ نہ صرف انسانیت بلکہ حیوانیت کی سطح تک گر جائیں گے۔ جب مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا رہے، مسلمان رہے، تب تک مسلمانوں میں وہ قوت، وہ شان و شوکت موجود رہی، عروج اور ترقی کے ایک معیار پر تھے مسلمان۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اختلاف اور انتشار کے شکار ہو گئے تو مسلمان گراوٹ کے پاتال میں چلے گئے۔ مسلمان جب اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئے، وہ زوال کا شکار ہوئے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے۔ صحابہ مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھے؟ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ ان کی پہچان کیا تھی؟ ان کی شناخت کیا تھی؟ وہ قبائلی بٹوؤں کی طرح چند گروپوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے، نہ کوئی طاقت تھی نہ شان و شوکت تھی۔ لیکن جب اسلام کا انقلاب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر آفرین تعلیمات نے مسلمانوں کو، لوگوں کو اسیر کیا، سارے کے سارے لوگ ایک کلمے کے تحت ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے، پھر کیا ہوا؟ ایک تاریخ رقم کر ڈالی، خلافت راشدہ کی صورت میں پوری دنیا میں ایک پہچان، ایک شناخت قائم کر ڈالی، اور یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلا۔ آج جو 57 ممالک ہے وہ کن لوگوں نے فتح کیے ہیں؟ آج کے ریشنل مسلمانوں نے، سائنٹیفک مسلمانوں نے، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں، بے شرمو سنو، آج جو تمہاری پہچان باقی ہے، تمہاری ذرہ برابر بھی لاج باقی ہے، یہ صحابہ کرام کی دین ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک کو صحابہ کرام نے فتح کر کے دیا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اختلاف اور انتشار کر کے سوائے ان کو برباد کرنے کے اور کیا ہی کیا ہے؟ تو روافظ کی اولادوں کو یہ جاننا چاہیے کہ قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں یا ہماری کسی حد تک پہچان باقی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں کیا؟ ملک شام، مصر، اسکندریہ، یہ کس نے دیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ ایک زمانہ تھا کہ روافظ نے وہاں ہلچل مچا رکھی تھی، وہاں اختلاف اور انتشار کے لیے ایک سازش بپا کر رکھی تھی، لیکن ایک بار پھر سے موقع آیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کے لیے، شام میں ایک بار پھر سے وہ لہرا رہے ہیں، لہلا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام پہلے کیا تھے؟ پہلے کچھ نہیں تھے، مگر جب ایک کلمے کے تحت جمع ہوئے تو وہ کیا ہو گئے؟ ایک تاریخ ان کے نام ہو گئی، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ایک ایسی تاریخ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس اتحاد کو، اس اتفاق کو نعمت کے طور پر ذکر کیا، اور خلافت راشدہ کا جو پورا عرصہ رہا ہے اس عرصے کو اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کیا کریں اتحاد و اتفاق کے لیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اتحاد و اتفاق کے لیے؟ مسلمانوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر مسلمان ہیں
तो अंदरूनी सतह पर भी मुसलमान बने, समाजी सतह पर मुसलमान हैं तो अहले खाना के दरमियान भी, बाल बच्चों के दरमियान भी मुसलमान बाकी रहें, मुसलमानों का किरदार अदा करें। अगर आप नमाज की सफों में मस्जिद में आकर मुसलमान साबित करते हैं तो आप अपने फंक्शंस में, अपनी तकरीबात में भी अपने आप को मुसलमान साबित करें। दीनी महफिलों में अपने आप को मुसलमान जाहिर करने से, मुसलमान साबित करने से आप मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। आपको दोनों सतह पर मुसलमान बाकी रखना होगा और साबित रखना होगा। यह दोहरापन है मुसलमानों। बहुत से लोग अपनी निजी जिंदगी में, तिजारत और मुलाजमत में, लेन देन के मामलात में, तकरीबात में, शादी और ब्याह में अपनी पहचान भुला देते हैं। वो कभी काफिर होते हैं, कभी मुशरिक होते हैं, कभी यहूदी होते हैं, कभी मजूसी होते हैं, कभी नसरानी होते हैं, मगर मुसलमान बाकी नहीं रहते। बाज दफा ताज्जुब होता है, अरे ये वही हाजी साहब है जो नमाज पढ़ने आते हैं, ये वही साहब है जो लंबी लंबी जुबान लेकर लोगों की इस्लाह करते हैं। देखो गाने बज रहे हैं, ढोल तमाशे चल रहे हैं, उनके शादी ब्याह में बेशुमार फजूल खर्चियां हो रही हैं, बेहयाइयां हो रही हैं। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों ये दोहरापन छोड़ो, ये दोहरापन छोड़ो। जो आप बाहर हैं वो अंदरूनी तौर पर भी बनने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। ऐ ईमान वालो यानी ऐ ईमान का दावा करने वालों ईमान ले आओ। गोया कुछ ईमान ऐसे भी होते हैं या ईमान के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जाहिरी होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरफ इशारा कर रहा है। ईमान का इजहार कर रहे हो, ईमान का ऐलान कर रहे हो तो अंदरूनी तौर पर भी मोमिन बनो। जो लोग जाहिरी तौर पर इस्लामी अमाल को बजा लाते हैं वो मुसलमान तो जरूर हैं मगर मोमिन नहीं हैं। अल्लाह ताला ने जितने वादे किए हैं वो वादे मोमिनों के साथ किए हैं। मोमिन वो लोग हैं जो जाहिरी तौर पर भी मुसलमान हैं और अंदरूनी तौर पर भी मुसलमान हैं, और मुसलमान वो लोग हैं जो जाहिरी तौर पर इस्लामी अमाल को बजा ला रहे हैं। कभी जुमा पढ़ लिया, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ ली, कोई इस्लामी रस्म अदा कर दिया, ये मुसलमान है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए नहीं कहा कि जहन्नम से बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने जहां भी कहा है मोमिनों की बात की है, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन लोग कामयाब होंगे। मुस्लिम लोग कामयाब होंगे इस बात की गारंटी अल्लाह ताला ने नहीं ली है। लिहाजा ये दोहरापन छोड़ो, दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, दोरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम बन या संग हो जा। अंदरूनी तौर पर अपने आप को मुसलमान बनाइए। और दूसरी चीज, ऐसे मादा परस्त मुसलमानों से या मुनाफिक मुसलमानों से, दोहरे मुसलमानों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जिस दुनिया की तलब में तुम लगे हुए हो उसकी हकीकत क्या है, उस दुनिया की हकीकत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी समझाइश कर रहा है। इन्नमा हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल कमसली गैसिन अजबल कुफ्फार नबातु। ये जो तुम शेखियां बगाड़ते हो ना, अपने बंगले के हवाले देते हो, अपने घर के प्लॉट्स के हवाले देते हो, अपनी दौलत के हवाले देते हो, अपनी शान और शौकत के हवाले देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, लाइब व लहून, खेल तमाशा है, घड़ी दो घड़ी का वाकया है। कमसली गैसिन अजबल कुफ्फार, जब बारिश होती है किसान खुश होता है, फसलें अच्छी उगेंगी, किसान खुश होता है, फसलें अच्छी उगेंगी, फसलें हरी होंगी, लहलहाएंगी। फसलें उगती भी है, हरी हरी और ताजा भी होती है। अल्लाह ताला दुनियावी जिंदगी की मिसाल दे रहा है। इसी तरह इंसानों की जिंदगी है। इंसान जब जवान होता है हरा भरा दिखता है, तरोताजा दिखता है, धीरे धीरे उम्र के साथ उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे पजमुर्दगी और मायूसी छाने लगती है। जिस तरह फसलें पीली पड़ने लगती हैं उसी तरह इंसान भी पजमुर्दा होने लगते हैं। यहां तक कि फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, वो भूसों में तब्दील हो जाती हैं और इंसान मौत से हमकनार हो जाता है। यहां तक कि इंसान कंकाल में तब्दील हो जाता है। ये तो मिसाल है जो अल्लाह ताला समझा रहा है। यही हकीकत है इस दुनिया की। इसके अलावा हुब्बे जाह, शान और शौकत की और कोई हकीकत नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हम मना नहीं करते कि आप
दुनिया में अपना हिस्सा बनाइए, मकाम बनाइए, मनसब बनाइए, शान और शौकत पैदा कीजिए, मना नहीं करते, ना अल्लाह मना करता है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं। मगर नजर क्या होनी चाहिए, फिक्र क्या होनी चाहिए, आखिरत पे नजर होनी चाहिए। आप ऐसे मुसलमान बने जिसके अंदर दुनिया भी हो और दीन भी हो, जिसकी नजर आखिरत पे हो, हमेशा रहने वाली जिंदगी पे भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला कुलूबिकुम इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला नहीं देखता तुम्हारे पास बैलेंस कितना है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, ना वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, तुम्हारी सोच को देखता है, तुम्हारे इरादे को देखता है, तुम्हारे कारनामे को देखता है। क्या किया तुमने अपने भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए। तुम्हारे मनसब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, तुमने दिया क्या है इस दुनिया को। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे कारनामों को देखता है। अगर शान शौकत है, दौलत है, मकाम मनसब है, काबिल मुबारकबाद है, मगर इसका इस्तेमाल सही हो, जो तुम्हारे लिए यादगार बने, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग दुआएं दे, फला साहब थे, कौम के लिए इतना काम किया, अपने समाज के लिए, मुस्लिम मुआशरे के लिए इतना बड़ा किरदार अदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुतालबा करता है। मादा परस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे मतलब है। दूसरी चीज हमें जो करना है वो करना है कि मुसलमानों के हुकूक को अदा करो, मुसलमानों के हुकूक को अदा करो। मुसलमानों के हुकूक को हम कब अदा करेंगे, जब अपनी ड्यूटीज को समझेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मुस्लिम समाज को दो हिस्सों में तकसीम किया है। मल्लम यरहम सगीरना वलम यकिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जिसने अपने छोटों पर रहम नहीं किया और अपने बड़ों का एहतराम नहीं किया, वो हम में से है ही नहीं, मुस्लिम समाज से बाहर, आउट। तो एहतराम का जज्बा, एहतराम का रिश्ता, इसी तरह से शफकत और मोहब्बत का रिश्ता, जितने बड़े हैं वो अपनों से प्यार करने वाले, अपने छोटों से प्यार करने वाले बन जाएं, और जितने छोटे हैं वो अपने बड़ों से मोहब्बत करने वाले, उनकी ताजीम करने वाले बन जाएं। एक रिश्ता खुद ब खुद बिल्ट हो जाएगा, उस्तवार हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हुकूक करार दिए हैं मोमिनों के, उनमें से 6 बुनियादी हुकूक हैं। हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे 6 हक है। मुसलमान के आपस में बाहमी 6 हुकूक हैं। इदा लकीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मिलो तो सलाम करो, जब मिलो तो सलाम करो, सलाम करना वाजिब, सलाम का जवाब देना वाजिब। पता ही नहीं चलता बाद लोगों की मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है, सलाम करें तो कैसे करें। मुसलमान दिखना चाहिए तब सलाम करें, मुसलमान दिखेंगे नहीं तो सलाम करेंगे कैसे। तो जाहिरी जो शायर है तुम्हारी जो वज़ाक़त है, तुम्हारी जो पहचान है, वो पहचान मुसलमान होनी चाहिए, तब कोई सलाम करने वाला सलाम करेगा। लेकिन अगर आप पहचानते हैं गरचे के वो रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, सारे लोगों को सलाम करना है। हमारे यहां क्या है, जरा सा पैसा आया, जरा सा मनसब मिला, थोड़ा सा टैलेंट हो गया, गुरूर आसमान को छू रहा है, काहे को सलाम करने जाए। बड़े लोग छोटे को सलाम करते ही नहीं है, छोटे चाहे गरीब हो, छोटे चाहे उम्र में छोटे हो, सलाम करते ही नहीं है। काहे का गुरूर है भाई। तुम्हारी जाहो हशमत चंद दिनों का खेला है, अभी मैंने बताया है। सलाम करो एक दूसरे को, और जब सलाम करना है तो सलाम में शऊर शामिल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से ये बात गिरा बांध लो। अगर मोहब्बत को आम करना है, अगर भाईचारे को आम करना है, रिश्तों को मजबूत करना है, तो इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी चीज ना बताऊं कि झगड़े खत्म हो जाएं, इख्तिलाफ खत्म हो जाए, मोहब्बत आम हो जाए। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम के रिवाज को आम करो। बच्चे जब घर से जाएं, घर में आए, सलाम सिखाइए बच्चों को। जिन घरों में सलाम का रिवाज है उन घरों में सलामती है। मतलब क्या है सलाम का, अस्सलामु अलैकुम, आपके ऊपर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और अल्लाह ताला की बरकतें हो। जिन घरों में बार बार ये दुआएं दी जाती हो, यकीनी तौर पर उन घरों में सलामती भी होगी, अल्लाह ताला की रहमत भी होगी, अल्लाह ताला की बरकतें भी होंगी। अगर किसी को सलाम करो तो शऊर के साथ सलाम करो कि मैं एक दुआ दे रहा हूं अपने भाई को। इंशाअल्लाह
जब दूसरे को दुआ दोगे उस दुआ का असर कम अज कम आपकी हद तक तो जरूर होगा। तो सलाम करना है एक दूसरे को। वक्त हो गया, बस ये इसी एक नुक्ते पर अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया है कि एक दूसरे को सलाम किया करो। जब भी मजलिस में आइए, मजलिस से उठिए, घर जाइए, छोटे से मिलिए, बड़े से मिलिए, किसी से भी मिलिए। मल्लम यारिफ व तारुफ, जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो, गरचे के वो मुसलमान है, सबको सलाम करना है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें इत्तेहाद इत्तफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इख्तिलाफ और इंतशार की जितनी बातें हैं उन तमाम बातों से हमें गुरेज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।